जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, ये दरिया जो झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। साथियों, समय करवट ले चुका है, बदलाव की बयार पूरे देश में बह रही है। चेंज इज नाउ। और इसी सकारात्मक संदेश के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में मैं देश के हर कोने से आए हमारे संघर्ष के साथी का, कांग्रेस के प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम को देश विदेश तक पहुंचाने का माध्यम बनने वाले सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करती हूं। सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का अभिनंदन करती हूं। हम सभी की मार्गदर्शिका, हमारी प्रेरणा स्रोत, जिनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, आदरणीय सोनिया गांधी जी का स्वागत करती हूं। और हर दिल अजीज नेता, भारत की सियासत के चमचमाते सितारे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले आज इस महाधिवेशन के दूसरे दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूंगी। कार्यक्रम की शुरुआत इंटरनेशनल रेजोल्यूशन से होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को आदरणीय आनंद शर्मा जी प्रस्तुत करेंगे, जिनका समर्थन करने के लिए गौरव गोगोई मंच पर आएंगे। तत्पश्चात हम चाहेंगे कि इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे बीच से कुछ वक्ता आए, मंच पर अपने विचारों को रखें। वक्ताओं के भाषणों के बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी का उद्बोधन होगा, अभिभाषण होगा। फिर दूसरा प्रस्ताव हमारे सामने आएगा, जो कि आर्थिक नीतियों पर है, देश की अर्थव्यवस्था पर है। इकोनॉमिक रेजोल्यूशन को करने के लिए आदरणीय स्टेट पर आएंगे, उनका समर्थन करेंगे श्री वीडी सतीसन जी। फिर वक्ताओं किया की हिंदी फिल्म दिखाई जाएगी, जिसका शीर्षक है डरो मत। एक पैनल डिस्कशन है, विजन 2020। मॉडरेटर सैम पिट्रोडा जी रहेंगे और कुछ वक्ता रहेंगे जो मंच पर आकर इस पैनल डिस्कशन में शिरकत करेंगे। और फिर वो लम्हा आएगा जिसका हम सभी को जिसके बाद स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य मंच पर आएंगे और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। आज की यही रूपरेखा है और अब पहले कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ते हैं। We are living in the times when optics has taken precedence over outcome in international relations, where diplomacy is increasingly becoming synonymous with diplomacy, when flip-flop foreign policy of the current day government is not just damaging the enviable position of India amongst the Committee of Nations, which was achieved during the UPA regime, but is leading towards a never-before strained relations with our neighbors. The so-called 56-inch muscular policy has majorly failed. Therefore, in the current situation, Congress Party's credible views on international affairs have become extremely crucial and important. So now I would like to call upon stage Deputy Leader of the Congress Parliamentary Party in Rajya Sabha, former Cabinet Minister, former President of the Indian Youth Congress, and one of the most vociferous and forthright voices in Rajya Sabha, Shri Anand Sharma ji, to move the resolution on international affairs. Shri Anand Sharma ji. Honorable Congress President Shri Rahul Gandhi ji, our leader,
Chairperson of the Congress Parliamentary Party, Srimati Sonia Gandhi ji, Dr. Manmohan Singh ji, members of the Steering Committee, Pradesh Congress chiefs, CLP leaders, our distinguished guests from abroad, leaders representing fraternal parties, diplomats, comrades and friends. It's my privilege today in this plenary of the Indian National Congress to introduce for your consideration the resolution on the foreign policy. The foreign policy of our country throughout in its history has been deeply influenced by the commitments made by the leaders of the freedom movement, in the commitments that were given to nations which were suffering like India, from Africa, in Asia to Latin America, by the father of the nation, Mahatma Gandhi, and India's front-ranking leader of the freedom struggle, a global statesman, Jawaharlal Nehru, that independent India will stand up in solidarity with those who have suffered subjugation, colonization, and exploitation. That independent India will stand up and fight for dignity and honor of all human beings and for the freedom of nations. It is important to recall that the foreign policy that India pursued had a blend of pragmatism, idealism, and a deep print of the vision of Pandit Jawaharlal Nehru. He ensured that we pursue a policy which is sovereign, which is independent, that we do not lean towards one side or the other, but retain the option to express our mind as a large country which had rightful aspirations to be a leader in the comity of the nations. And that is what took India forward. We have friends here from those countries where battles were fought for liberation, against apartheid in South Africa, for the liberation of other colonized countries, whether these were in Asia or Africa. It was Pandit Nehru and Indira, India's vision, that secured the sovereign interest of these countries through the non-aligned movement, bringing together the countries of these three large regions to form a bloc which had shared concerns and common interests. Foreign policy, people may say, is something which is foreign. I would like to say that it is integral to our national interest and therefore the enlightened vision that we had throughout. It must uphold and secure sovereign national interests of the country. Congress governments consistently pursued this policy which enhanced India's image and India's respect in the world. We were careful enough to know that it is important for us to manage our periphery and our neighborhood. There was a strong national consensus on India's foreign policy. It was bipartisan. It was never held hostage to domestic politics. That was our strength. I am saddened to note here that that consensus built over decades has been unraveled. The continuity of India's foreign policy
has been disrupted by the BJP and Modi-led government. They have made foreign policy a divisive national issue. In the last 4 years, there has not been one occasion when Prime Minister Shri Narendra Modi thought it wise to consult those who have rich experience of managing India's engagement with the world. Not even once an effort was made to repair the damage done to the national consensus. Friends, the present government and the Prime Minister have pursued a policy, foreign policy, in a cavalier manner, which is non-serious. The Prime Minister is carried away by his own propaganda. Today, it's a matter of concern that we have mismanaged our relations with major capitals of the world, with major strategic partners, and our immediate neighborhood. The foreign policy of this government is confused. It is bereft of any direction. It lacks focus, and that is our concern. Can India have a personalized foreign policy or a national foreign policy? Today, Prime Minister's visits abroad or our engagements have become purely transactional. It lacks coherence. It lacks a futuristic orientation. And it's not only that. Prime Minister of India makes disparaging remarks about his predecessors, about the previous governments, negates India's achievements since independence, and expects us not to question or challenge when that is being done. It's the first Prime Minister who has undermined country's own credibility. I would like to recall here with a sense of pride that in 1955, it was Pandit Jawaharlal Nehru who brought together the leaders of the countries which I mentioned in Asia, in Africa. That was the beginning in Bandung of the non-aligned movement. And when the 60th anniversary was held, India's speeches, India's statement did not refer to Pandit Nehru, but the host country and the other leaders hailed Jawaharlal Nehru's contribution. It's a matter of shame that the present government chose on the international stage not to acknowledge what this country's foreign policy achievements were. Same thing happened when we had the summit on Africa. It was Dr. Manmohan Singh as Prime Minister. When we discussed and decided to institutionalize India's engagement with Africa, India-Africa Forum Summit was convened. This government convened it only once, in a big way, and did not refer to Pandit Nehru or Srimati Indira Gandhi. We are grateful to the heads of states and prime ministers of the African continent who one after the other got up to say that it was Nehru, it was Congress, it was India, because of which we are sovereign nations. I thought it is important to share with all my friends and colleagues and comrades in the party that this is the manner in which the foreign policy is being pursued. एक नई परेशानी है। देश के प्रधानमंत्री जहां जाते हैं कहते हैं पहली बार भारत की पहचान हो रही।
पहली बार दुनिया में भारत का सम्मान हो रहा है। हमने कई बार बताने की कोशिश की, माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा मजाक मत करें, सदियों पुराना देश है, आजादी के बाद हमने बड़ी चीजें हासिल की हैं। भारत का सम्मान पूरे देश के अंदर था, दुनिया के अंदर। अब ये बताना पड़ेगा इनको कि मई 2014 से पहले हिंदुस्तान था जिसको दुनिया सलाम करती थी। भारत परमाणु शक्ति बन चुका था इंदिरा गांधी के समय, हम अंतरिक्ष शक्ति बन चुके थे, हम मंगल ग्रह पे चले गए थे, हम चंद्रमा पर चले गए थे, चंद्रायन, मंगलायन। और यहां हमारे वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, जो कहते इससे पहले कुछ हुआ नहीं, कोई पहचान नहीं थी हिंदुस्तान की। मैं निंदा करता हूं ऐसे प्रधानमंत्री की जिन्होंने देश का अपमान किया है। ये कांग्रेस का, नेहरू, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का नहीं, हिंदुस्तान का अपमान है और हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है? कोई बड़ा देश अपने पड़ोस के साथ संबंध ना ठीक हो, वहां पे प्रभाव ना हो, तो कैसी विदेश नीति चलेगी? The neighborhood policy must be given the highest priority. Yes, we have complex relationships with some of our neighbors. There are historical reasons. But we have to manage. Whether it's China or with the relationship with Pakistan. But we have very special and privileged relationship with Bangladesh. Who in India does not remember my generation? The bonding between Srimati Indira Gandhi and Bangabandhu Mujibur Rahman. We all remember with pride the liberation of Bangladesh. Can we forget what we share with Nepal, with Bhutan, with Sri Lanka? But today, we have a situation. We are the largest country in the subcontinent, largest dynamic economy, a country which straddles the vital Indian Ocean, which crisscrosses, covers the sea lanes. It's important for maritime security, for maritime trade. But we have never been more enfeebled in our neighborhood, where India's influence and voice does not matter. I would like to tell the Prime Minister and this government from the Congress side, please pause. Please take the right steps. Respect the sensitivities of our neighbors. Ensure what India has believed in and what we committed under Congress, that there has to be a region of stability and a region of shared prosperity, without which we cannot have any meaningful international engagement. But with Pakistan, there was no dispute when it comes to fighting terrorism. It's a major challenge before India. We have been victims for decades. We have lost thousands of lives of our citizens, of our soldiers. But we didn't divide the country while confronting terrorism. We united India to fight terrorism. Our leaders made supreme sacrifices. They gave their lives. Can we forget whether it was Indira ji or Rajiv Gandhi ji? But today's government is making Pakistan policy a divisive national issue. We all are one in saluting our soldiers. हम सलाम करते हैं भारत की फौज को, जो हमारी सरहदों की रक्षा करती है, हमारे लोगों की रक्षा करती है। इस पे हमने कभी देश को बांटा नहीं है, इस सरकार ने बांटा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बांटा। पर जहां तक प्रश्न है, हमारे समय में जो नीति थी, दुनिया भूल गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे एक साथ नाम नहीं लिया जाता था, इंडिया पाक। We had done away with that hyphenation, and today that hyphenation is back. That is our major concern. Yes, we will fight terrorism. Pakistan must realize that the history and the geography of the region cannot be changed. But at the same time,
it is in their interest also to do what they should have done long back, to build those bridges of trust with India, honor the words, and dismantle the terror syndicate that targets India. With China too, we have a strategic and cooperative partnership. It's complex. But in 2005, when Dr. Manmohan Singh ji was the Prime Minister, at that time, an understanding was reached with China. Political parameters, guiding principles to settle all disputes. There are disputes, but we must have the maturity as two large countries of Asia, as two large economies, two most populous countries, to strengthen our relationships. And China too must respect India's concerns and India's sensitivities. Yes, through episodical approach, space has been created in our neighborhood where other countries entrench themselves. Time has come for India to think and to go in for a course correction. I would like to mention here with concern that we don't have the same vibrant engagement with the continent of Africa, resource rich. There's so much of goodwill for this country, except for grand event, which Prime Minister is so fond of. It has to be big. After that you forget. One big summit and thank you to Africa. We tell our friends that Indian National Congress is determined to restore the vigor, the strength of its partnership and friendship with the continent of Africa. We remain committed to that. Equally, we have neglected Latin America. There is no engagement of India today with Latin America, large region. Prime Minister talks of BRICS. Shri Narendra Modi ji, BRICS was our time. You say nothing happened from the first summit up to the summit in 2013. We launched SIPSA. I was there with my Prime Minister. So today, if you say that you are pursuing a policy which takes care of India's national interest, I'm sorry, that's not true. We are living in a world where the global landscape is fast changing. India has to respond with a strategy, with coherence, which unfortunately we are lacking today. The world order has to change to reflect the contemporary global realities, social, political, and economic. Congress is of this firm view that the United Nations Security Council has to change. You cannot have an international body deciding the fate of the world which excludes the largest democracy on this planet, that's the Republic of India, which excludes the continent of Africa and Latin America. We are together to ensure that it happens. हमको अपने बड़े मित्र राष्ट्रों से संबंधों को देखना पड़ेगा। रूस एक हमारा पुराना साथी देश है, आजमाया हुआ साथी दोस्त देश है। वहां संबंध कमजोर हुए हैं, हमको उस बात की चिंता है। अमेरिका के साथ केवल व्यापार के संबंध नहीं हो सकते, जापान के साथ भी संबंध केवल एक बुलेट ट्रेन ले जाने के लिए सीमित नहीं हो सकते। Therefore, time has come for us to recalibrate our relationship with major partner countries. Check the slide with Russia.
improve the engagement with Japan, remain integral to the large emerging picture of the Asian economic integration. I must say about Middle East, ये गलती होगी अगर मैं नहीं बोलूंगा। लाखों हिंदुस्तानी वहां पे रहते हैं, वहां से हमारे भारत के मूल के लोग यहां आए हैं। We are concerned over what is happening, the violence, the strife, the terror. We are equally concerned about the delay in the creation of a viable, secure state of Palestine. India has always stood for the creation of the state of Palestine, and here the Indian National Congress reaffirms its solidarity and shall remain committed throughout. There are so many things which other friends will say, and we have said in the resolution. मुझे केवल एक बात कहनी है माननीय प्रधानमंत्री जी से, कभी बात करें तो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हम लोग बताएं कि कहां कहां गलतियां हैं। कूटनीति में गहराई होनी चाहिए, ठहराव होना चाहिए। कूटनीति इवेंट मैनेजमेंट या फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। Effective diplomacy must have depth, must have gravitas. Photo opportunities and grand events are no substitute. एक जरूरी बात जरूर कहनी है before I conclude. जहां तक पड़ोसी देश का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बड़ी नसीहत दी थी हमको, हमारी सरकार को, वो बिना बुलाए पाकिस्तान गए थे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, पर्यटक के रूप में नहीं थे। जहाज पर तिरंगा था। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरे, उनको सलामी ना मिले, उनको गार्ड ऑफ ऑनर ना मिले, ये देश का अपमान क्यों करा कर आए थे? ये तोहफे लेकर गए थे, अचानक चले गए, तोहफे कहां से आ गए? ठीक है, और वापिस आए तब क्या हुआ? पहला तोहफा पठानकोट, और वो सूची लंबी है, गिनाने में समय लग जाएगा। तो समय है दुरुस्त करने का दिशा को, वक्त आ गया है बदलाव का, और इसमें कोई शक ना रहे। हमारे मीडिया वाले पूरी दुनिया को खबर पहुंचाएंगे, वक्त बदलाव का है। इंडिया शैल चेंज, इंडिया विल करेक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी, इंडिया विल रिटर्न टू द एनलाइटेंड वर्ल्ड व्यू ऑफ नेहरू under Congress and its allies. And that charge will be led by Rahul Gandhi. You wait. We shall remove an incompetent government which has damaged our international engagements, damaged our policy, damaged our credibility, and we reassure our friends we stand with you as Congress always did. Thank you. Jai Hind. Now I would like to call upon stage Member of Parliament Shri Gaurav Gogoi to second the international resolution. मैं मंच पर सांसद गौरव गोगोई जी को आमंत्रित करती हूं कि वो अपना समर्थन प्रस्ताव रखें। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एआईसीसी सीडब्ल्यूसी के और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ नेतागण, विदेश से आए डेलीगेट्स और मेरे प्यारे साथियों, मुझे अद्भुत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर पूर्वांचल के एक युवा सांसद को ये मौका मिल रहा है कि विदेश नीति के इस प्रस्ताव को समर्थन करें। साथियों, आज इस सरकार के 4 वर्ष हो चुके हैं।
लगभग 1 वर्ष बाकी है और आज समय आ चुका है कि सरकार के विदेश नीति का मूल्यांकन करा जाए। हमेशा हम प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते हैं, लेकिन जन की बात सुनने का आज ये इससे बढ़िया अवसर नहीं है। अगर हम देखें कि विदेश नीति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले 4 वर्ष क्या किए, तो उनके जो मूल अगर हम अचीवमेंट या मूल काम देखें तो ये है कि वो विभिन्न आसिया के विभिन्न देशों के राजधानी पे गए। वो बाहर जब जाते हैं तो बड़े बड़े मैडिसन स्क्वायर ग्राउंड में इंडियन डायस्पोरा से वो मीटिंग करते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा से अपना करीबी रिश्ता दिखाने के लिए उनको बराक कहकर पुकारते हैं। चीन, जिसके साथ हमारे बाउंड्री की बहुत से सारे समस्याएं हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वो साबरमती के किनारे टहलते हैं और जो एक विशाल एक लुकीस पॉलिसी, जो एक ढांचा हमने बनाया था कांग्रेस सरकार को, उसका नाम बदल करके उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। लेकिन अगर हम इन सब कामों का मूल्यांकन करें तो इस पर अगर देखें कि आउटकम क्या है, परिणाम क्या है, तो परिणाम देखेंगे तो एक बड़ा शून्य मिलेगा इस वर्तमान के केंद्र सरकार को। आज विदेश नीति राष्ट्र हित के लिए होती है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे भारतवासी दूसरे देशों में हैं उनका संरक्षण करने के लिए। लेकिन आज विदेश नीति एक व्यक्ति विशेष नीति बन गई है और भारत के जो हमारे उद्योग के जो जितने उनके समस्याएं हैं उनको नकार दिया गया है। आज पड़ोसी देश में पिछले जो सरकारें थे, केंद्र में जो सरकारें थे, हम सब कहते थे कि हमारे पड़ोसी देश को सर्वोच्चतम महत्व देना चाहिए। नेबरहुड फर्स्ट was a rallying cry, but under Prime Minister Modi, neighborhood first has become neighborhood last. उन्होंने अपने हमारे पड़ोसी देशों से उन्होंने अपनी आंख उठा दी। वो प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स यूरोप से हैं, उनके साथ गले मिलने में इतना उनका दिलचस्प है कि जो पड़ोसी देश की जो हालात है वो दिन ब दिन उनके नजर उठ चुकी है, जिसका नुकसान भारत को हुआ है, भारत के सरकार को हुआ है, भारत के लोगों को हुआ है। आज यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से लोग आए हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बड़ा नया संकल्प इन देशों के साथ नहीं लिया गया है। अब आज इन देशों के साथ हमें कनेक्टिविटी पे जोर देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना है, बॉर्डर ट्रेड पे जोर देना है, लेकिन आज भी इस वर्तमान सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी के आधार पे कोई भी बड़ा संकल्प नहीं लिया है। आज यहाँ पे मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ से प्रतिनिधि आए हैं। इन रिश्तों को जितना महत्व देना चाहिए, मालदीव्स के साथ जो रिश्ते को जो महत्व देना चाहिए, नेपाल के रिश्ते को जो महत्व देना चाहिए, आज की वर्तमान सरकार उस महत्व नहीं दे रही। जो हमारे देशों के बीच में जो संवाद होता था, उस संवाद में भी जो एक वाणी होती थी, एक मिठास की वाणी होती थी, एक समय भारत और नेपाल के वाणी के बीच में एक मिठास होती थी, आज उस मिठास में भी कोई एक परिवर्तन आ रहा है, उसको हमें सुधारना होगा। अफगानिस्तान में भी हमारे जो MEA के जाबाज डिप्लोमेट्स हैं, अफगानिस्तान में भी जाके उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और मोदी जी के सरकार के जो इरेटिक डिसीजंस होते हैं, जो हार्ड डिसीजंस होते हैं, कभी रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कभी हाईवे उन्होंने ब्लॉक कर दी, कभी लास्ट मिनट कहीं उनको जाना था वो विजिट उन्होंने कैंसिल कर दी, इमिग्रेशन पे वो ज्यादा बोलते हैं। तो इन सब बातों से जो पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, जो पूरा इरेटिक है, उससे हमारे और हमारे पड़ोसी देशों के रिश्ते में एक गैप आ गया है, एक डिस्टेंस आ गया है, जिससे कि हमारे ही भारत की राष्ट्र हित को आज नुकसान हो रहा है। एक्ट ईस्ट की वो बड़ी बड़ी वाहवाह लेते हैं, लेकिन एक्ट ईस्ट के अंदर भी लुकीस के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स किए गए थे, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट किया गया था, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट किया गया था, आज एक्ट ईस्ट के द्वारा उन्होंने वो लुकीस वाले काम भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किए, तो किस बात की वो आज वाहवाह ले रहे हैं। आज पाकिस्तान को यहां से इस मंच से एक मैसेज जाना चाहिए कि हम किसी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हम समर्थन नहीं करते।
और किसी प्रकार के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आने वाले समय में भी हम उनको एक बहुत इसका कठोर उत्तर देंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं, भारत देख रहा है कि जो भारत के एलाई देशेस हैं, जो देश जो भारत को जिसको हम संबंधी और एलाई के रूप में देखते हैं, आज उनका भी एक रिश्ता बन रहा है पाकिस्तान से। और हमारी दरखास्त रहेगी कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से अंत नहीं होता, तो हर देश जो पाकिस्तान से रिश्ता बनाना चाहता है उनको देखना पड़ेगा कि वो टेररिज्म के पक्ष में है या टेररिज्म के खिलाफ में है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कश्मीर को नहीं निकाल सकते। आज हमें कश्मीर में शांति चाहिए, आज हमें कश्मीर में विकास चाहिए, आज हमें कश्मीर में युवाओं के सपने को साकारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज कश्मीर में जिस प्रकार से तनाव आ रहा है, इसमें मोदी सरकार जो उनकी खुद की वहां पे राज्य सरकार है, उनको खुद आत्ममंथन करना होगा कि कहां गई कश्मीर में कश्मीरियत, कहां गई कश्मीर की शांति, कहां गई कश्मीर की विकास। हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी आसिया में, आज पूरे यूरोप में, अमेरिका में चीन बढ़ता हुआ एक शक्ति है। हम चीन की बढ़ती हुई शक्ति को हम उनको देख रहे हैं। लेकिन हम जो भारत का हमेशा एक रवैया रहा है कि हम कोई एक शक्ति पूरी दुनिया पे राज करेगी, इस पे हम विश्वास नहीं करते। हम एक लोकतंत्र है और दुनिया की तरफ भी हमारा जो रवैया है वो लोकतंत्र है। हम चाहते हैं कि हर देश अपने जो उनके इंटरेस्ट है उनकी संरक्षण करने का उनका पूरा अधिकार है। हम चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। हम चाहते हैं कि नए देश जो पहले लीस्ट डेवलप थे वो आगे जाके और डेवलप्ड हो। हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमीज पहले इमर्जिंग थे वो और आगे बढ़े। हम सबके विकास चाहते हैं, हम सबको आगे बढ़ना चाहते हैं। वी डू नॉट बिलीव इन अ होमोजेनियस पावर, वी बिलीव इन अ हेटेरोजेनस सोसाइटी। हम ये भी देखते हैं कि आज अमेरिका में नए सरकार आने के बाद हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की H-1B वीजास पे बहुत से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। दोस्तों, आज हमें अपने आईटी सेक्टर पे खास करके हमें उनको ध्यान देना पड़ेगा। भारत में भी आज हमारे आईटी सेक्टर में अनगिनत नौकरियों के लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। बहुत से लोगों को ले ऑफ होने की जरूरत पड़ रही है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत के जो सरकार है वो सिर्फ अपने प्रधानमंत्री की और उनके राष्ट्रपति के रिश्ते के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके H-1B वीजास को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज भारत से बहुत से फूड एक्सपोर्ट अमेरिका को जाते हैं। आज भारत से बहुत से मेडिकल कंपनीज आज वो अमेरिका में जाते हैं। लेकिन जब अमेरिका में वो जाते हैं तो उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलता। अमेरिका में वो विभिन्न प्रकार के कोर्ट्स में उनके काम उलझे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के कानून और नियम के कारण उनके काम उलझे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार, हम अमेरिकी कंपनी के यहाँ के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो करते हैं, लेकिन भारत सरकार इंडियन कंपनी के विदेश देशों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में चिंता नहीं करती। आज हम देख रहे हैं कि मेडिसिन स्क्वायर में जाके हम आईटी प्रोफेशनल्स के साथ बात करते हैं, सिलिकॉन वैली में जाके प्रधानमंत्री आईटी प्रोफेशनल्स के साथ बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि सिलिकॉन वैली के कितने आईटी प्रोफेशनल्स भारत आके स्टार्टअप इंडिया के द्वारा उन्होंने स्टार्टअप खोला है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा स्टार्टअप इंडिया स्कीम आज फेल हो चुका है। स्टार्टअप इंडिया सुनने में अच्छा लगता है। हम सोच सकते थे कि स्टार्टअप इंडिया के द्वारा सिलिकॉन वैली में जो हमारे भारत के आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आईटी कंपनी के बड़े बड़े सीईओ हैं, आज वो यहां पे आ सकते थे, इंडियन स्टार्टअप को एक बड़ा पुश मिल सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अगर स्टार्टअप के बारे में हमें सीखना है तो कर्नाटक के हमारे कांग्रेस सरकार से हमें सीखना पड़ेगा। आज उन्होंने एक स्टार्टअप मॉडल बनाया है, आज उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार स्टार्टअप की बात करती है, लेकिन इस सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में कांग्रेस सरकार ने एक मॉडल दिया है, उस मॉडल को लेके वो बाहर जाएं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि आज MEA और विदेश नीति, एक फॉरेन पॉलिसी जो राष्ट्र के हित को आगे बढ़ाने का एक माध्यम होना चाहिए, आज वो सिर्फ प्रधानमंत्री के अभिमान को आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम बन चुका है। आज पूरा MEA मशीनरी भारत के प्रधानमंत्री के अभिमान और उनके ईगो को आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम बन चुका है।
दुर्भाग्यजनक है कि आज विभिन्न एम्बेसीज को निर्देश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को इकट्ठा करे, और ऐसे रैली में प्रधानमंत्री ऐसे बात करते हैं कि उनके शपथ लेने से पहले भारत में हर व्यक्ति जो जन्म लेता था वो अपने आप को बदनसीब कहता था। इस प्रकार की शर्मनाक और दुर्भाग्यजनक बात की हम निंदा करते हैं। इस मंच से हम कहते हैं, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम अंत में हम ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते। विदेश नीति हमारे भारत के लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण एक चीज रही है। ऐसा भी एक वक्त था जब इंडिया, भारत और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील थी, तो कांग्रेस पे बहुत प्रकार के राजनीतिक आक्रमण हो रहे थे, लेकिन हम जानते थे कि वो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और उस डील के बाद भारत ने एक नई, एक शक्तिशाली और एक जिम्मेवार देश के हिसाब से अब पूरे दुनिया को अपनी पहचान दी, और इसका श्रेय मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को मैं देना चाहता हूं। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आज पूरे दुनिया भारत को एक इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे जीडीपी, हमारे मिडिल क्लास मार्केट को सहारती है। मैं श्रेय देना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे 1991 में, जिस प्रकार से इकोनॉमिक पैकेज उन्होंने निकाला, आज उसी के कारण आज हमारा जीडीपी 8% या 7% तक पहुंचा है। उसी के कारण आज हमारा मिडिल क्लास पहुंचा है। आज दुनिया बदल रहा है, देश बदल रहे हैं। जो देश पहले ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, आज प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं। जो देश पहले एक सिंगल कॉमन मार्केट की बात करते हैं, वो आज कॉमन मार्केट से हट रहे हैं। इस नए दुनिया में हमें जिम्मेदारी से